Good evening, everyone. Welcome to today's session of NutriLife 360. I'm your host, Ruchita. Today, we're going to discuss one of the most important organs, that is our gut. Did you know gut is also called our second brain, and that what we eat and when we eat directly impacts our gut health? The quality of our sleep can also be an indication of our gut health. To discuss all this and so much more about gut health and how it can be prevented, it can help us prevent and reverse multitudes of lifestyle diseases. Let's start the session. To begin, it is my honor and privilege to invite Farooq Tarapur. He, ladies and gentlemen, is an Olympian, two-time world champion in sailing, and has had an active sporting career of 40 years. He's won innumerable awards, including the Chhatrapati Shivaji Award and the Arjuna Award. But most importantly, he's a mentor to each and every one of us on the group with the mission Har Ghar Healthy, Har Ghar Medicine Free. Let's listen to him very, very carefully. Over to you, Farooq. Thank you, Ruchita. Good evening, everyone. Welcome to this exciting Monday session. Today, we're going to be discussing about gut health. If there is one thing that you really need to be careful about is your gut health, because as time is going, more and more clinical trials and research is bringing us to one single fact that most of your lifestyle diseases, begins from the gut. Things like brain health, dementia, Alzheimer's, Parkinson, all these were initially thought about that they originate in the brain. But more and more research is coming out that it all basically starts from the gut many, many years ago. There's not only a gut and brain axis, there's also a gut and a liver axis. Whenever people suffer from fatty livers, most of the time it's always the gut health, which has been not taken care of. Many people tell me, oh, I'm eating home cooked food. But trust me, is your home cooked meal really keeping your gut healthy? Genetically modified foods, soil erosion, processed food, refined food, super refined food, all this has stripped fiber out of our diet. And hence, it's no longer a luxury to supplement pre and probiotics. Okay, it's a necessity. Ensure that you get in touch with the person who's invited you over here. Find out that what I can do more to improve my gut health. Every time you put the food on the plate, ask yourself a question. Will this meal improve my good bacteria or will this meal improve my bad bacteria? Every time when you eat late at night, ask yourself a question. Will this improve my good bacteria or will this improve my bad bacteria? So, listen to this session very carefully. Manoj is someone who had no idea about all these things till he joined the community. And once he joined the community and he understood, he really turned his health, 180 degrees. He lost about 40 kilos in weight, improved his gut health, and took such a mastery on the subject that now, not only that he has improved his health and the family of his health, but is helping many people around him to change their health and have a better life and be medicine free. So over to you, Manoj. थैंक यू वेरी मच फारूक, थैंक्स अ लॉट। और जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमने जो कुछ भी सीखा है आप ही से सीखा है, जो कुछ पाया है आप ही से पाया है। हेल्थ का सवाल है जहाँ तक, और अब जब फाइनेंस की बात आ रही तो भी आप ही से बहुत कुछ सीख के सब कुछ कर रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि जितने लोग भी यहाँ पर हैं वो भी समझें इस चीज़ को और देखें किस तरह से ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है हेल्थ के रूप में भी, और ऑब्वियसली है जो बिजनेस के एंगल में इसको देखते हैं तो फाइनेंस के एंगल में भी। तो अब मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ और ओके,
मेरी स्क्रीन दिख रही है, आवाज आ रहा बराबर? Yes, Anjali. ओके, थैंक यू वेरी मच रुचिता। तो आज की जो हमारी बात चल रही है, बात होगी हमारी गट हेल्थ और गट रीसेट के ऊपर से। अब जैसे कि फरूक जी ने बताया कि गट कितना इम्पोर्टेंट ऑर्गन है हमारे शरीर का, है ना, और बेसिकली ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो पहले तो ये समझ लें कि गट होता क्या है, फिर हम समझेंगे उसे गट की हेल्थ क्या होती है, और फिर हम समझेंगे गट का रीसेट क्या होता है। तो तकरीबन ईमानदारी से मैं कहूँ, हालांकि मैंने अपना जो ट्रांसफॉर्मेशन किया ये पिछले 5-6 साल में किया, 5-6 साल पहले कर लिया था, लेकिन गट का मतलब मुझे एक्चुअली में पिछले 2 साल के अंदर पता चला है। तो अगर आप ये लेफ्ट साइड की पिक्चर देखेंगे, मुंह से लेके रेक्टम एनस तक ये पूरा गट है। हालांकि मुझे लगता था हमारा गट मतलब हमारा पेट, और इसीलिए बोलते थे, जैसे जब हम कुछ भी खाते थे तो कहते भी थे गट है या गटर है, कुछ भी डाल देते उसके अंदर, है ना। तो बट एक्चुअली ये गट का मतलब मुंह से लेके आखिरी जब अपना बचा खुचा वेस्ट जो आप सिक्रीट करते हो एनस तक, वहां तक पूरा आता है। इसके अंदर आपका मुंह आता है, सलाइवरी ग्लैंड आते हैं, जब आप मुंह में खाना डालते हो उसको चबाते हो तो कुछ आपके जूसेस उस खाने के साथ मिक्स होते हैं। उसके बाद स्टमक है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर लार्ज इंटेस्टाइन, और उसके बीच में कुछ कुछ चीज़ें और भी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जैसे कि लिवर है, गॉल ब्लैडर है, पैनक्रिया है, ये सारी चीज़ें हैं, है ना, जिससे ये पूरा गट का सिस्टम बनता है। तो बेसिकली अभी ये समझ में आ जाता है कि गट अगर ये है तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो इम्पोर्टेंस के लिए आप राइट साइड पिक्चर देखेंगे तो गट करता क्या है हमारे लिए। गट करता है खाने को ब्रेक करने का सबसे पहला काम, क्योंकि जब भी हम खाना खाते हैं तो हम कहने के लिए चबाते हैं लेकिन एक्चुअली नहीं चबाते हैं, है ना। तो ये जो चबाने वाला काम है और खाना कैसे खाया जाता है ये है, तो उसके लिए भी सेपरेट सेशन है हमारे पास, तो अगर आप आते रहोगे तो उसमें सुनने को मिलेगा आपको उसके बारे में। तो खाने को चबाने से लेके उसको ब्रेक करना पेट के अंदर, उसमें से उसके चीज़ें निकालना, काम की चीज़ें निकालना जिसको न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है, और फिर उसको आगे पास ऑन कर देना। तो टूटने का काम पूरा यही करता है, जो कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको तोड़ तोड़ के उसको सिंपलर बनाना और फिर एब्जॉर्ब कराने का काम करा के आगे पास ऑन कर देना, ये गट का काम है। फिर खाने के बाद जो भी हमारा वेस्ट बचता है, मतलब जो बॉडी को जिसकी ज़रूरत नहीं होती है, जी हाँ बिल्कुल, बहुत सारा खाना हम ऐसे खाते हैं जिसके हमारे शरीर को ज़रूरत नहीं है, ओके, या फिर कुछ ऐसा खाना है जो काम का तो है लेकिन उसकी क्वालिटी इतनी ख़राब है कि हमारा बॉडी ने उसको एब्जॉर्ब नहीं किया और बॉडी से बाहर फेंक दिया, और हमें लगता है कि हमने खा लिया। तो ये जो क्वालिटी क्या होती है, न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, ये भी आपको समझना पड़ेगा, है ना। न्यूट्रिएंट की क्वालिटी कैसे डिफाइन होती है, तो इसके लिए भी सेपरेट सेशन है हमारे पास, आप अटेंड करते रहोगे। अगेन आई एम सेइंग कि आपको नॉलेज मिलता रहेगा, ये एक सेशन अटेंड करने से ही पूरा नहीं होता है, और इनफैक्ट मैं तो कहूँ कि 3 महीना करने से ही पूरा नहीं होता, बट एक आपको ब्रॉडर व्यू मिल जाता है कि एक्चुअली हम क्या बात करते हैं, शरीर को हम स्वस्थ कैसे रख सकते हैं। तीसरा, गट के अंदर माइक्रोबायोम्स है, उसको रखने का काम, उनको संभालने का काम, उनको बैलेंस करने का काम ही गट करता है। लेकिन बैलेंस करने का काम, माइक्रोबायोम्स होते क्या है, आपने सुना होगा हमारे पेट में कई सारे बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, कुछ बुरे बैक्टीरिया होते हैं, है ना। तो ये पूरे गट में है, मतलब हमारे मुंह से लेके हमारे एनस तक हर पार्ट में गट है, और जिस तरह से हम ऊपर से नीचे जाते हैं इनका मल्टीपल होता रहता है टेंस में, मतलब थोड़ा नीचे आओगे 10 से मल्टीप्लाई करो, थोड़ा नीचे आओगे 10 से मल्टीप्लाई करो, उतनी इनकी क्वांटिटी हो जाती है। और इतनी क्वांटिटी कितनी होती है आपको पता है, इसके ऊपर आगे बात करते हैं, चलो ठीक है। दूसरा, गट का जो और एक बहुत जो इंपॉर्टेंट काम है वो है हार्मोन प्रोडक्शन। हम कई तरीके के हमारे हार्मोन्स हमारे बॉडी में हमारे को जरूरत पड़ती है, जैसे इंसुलिन हो गया, बाइल हो गया। इंसुलिन ये जो है पैनक्रियास से निकलता है, बाइल जो है गॉल ब्लैडर से निकलता है। अभी आप देखिए ना, पैनक्रियास से जो इंसुलिन निकलता है वो आपको शरीर में जो आपने खाना खाया है, खाना जो शरीर को दिया है, उसका जो कैलोरी है, उसकी जो शुगर है, उसकी जो एनर्जी है, उसको हर सेल तक पहुंचाने का काम करता है इंसुलिन, जो पैनक्रियास से निकलता है। गॉल ब्लैडर के अंदर से जो बाइल निकलता है वो आप जितना भी फैट खाते हो उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है, ओके। तो वो हार्मोन्स
बनाने का काम भी गट ही करता है। और कई ऐसे सैटिस्फैक्टरी हार्मोन होते हैं। सैटिस्फैक्टरी हार्मोन वो हार्मोन है जो आपको बताते हैं कि भूख लग गई है या नहीं, अभी भूख नहीं लग गई है, पेट भर गया है ना, भरा हुआ है या भर गया है, जो भी। ये सब सारे ऐसे कई तरह के हार्मोन्स हैं जो गट बनाता है। ओके, अब आ जाते हैं जो हमने तीसरी बात पकड़ी थी, क्योंकि हम आज गट और गट रिसेट की बात कर रहे हैं ना, तो गट माइक्रोबायोम्स के लिए आता है, बाकी तो उसे काम है, लेकिन माइक्रोबायोम्स, ये माइक्रोबायोम्स होते क्या है? ये एक हमारे शरीर में इकोसिस्टम है माइक्रोब्स का, जो हमारे बॉडी के अंदर रहते हैं। वो कई सारे काम करते हैं। वो वेस्ट खाने को खाते हैं, वो इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, है ना, ऐसे बहुत सारे काम करते हैं। तो जैसे भी आप नीचे नीचे आओगे, आपको 10 के मल्टीपल में वो बढ़ता रहता है। और कहा यह जाता है कि जितने हमारे बॉडी में सेल हैं, उससे तकरीबन 10 गुना ज़्यादा माइक्रोबायल सेल हैं। ओके, तो आप इमेजिन करिए कितने ज़्यादा हैं। और अगर टोटल करेंगे सब सेल बैक्टीरियाज को अगर हम, तो अप्रोक्सीमेटली 100 ट्रिलियन माइक्रोब्स हमारे शरीर के अंदर हैं। और जो कि 5000 अलग अलग जातियों के, मतलब एक ही टाइप का नहीं है। ओके, जैसे वायरस कई तरह के होते हैं, उसी तरह से माइक्रोब्स भी कई तरह के हैं। और ये 5000 से ज़्यादा डिफरेंट स्पीसीज के हैं। और इन सबको अगर टोटल किया जाए 100 ट्रिलियन माइक्रोब्स को, तो ये तकरीबन 2 किलो का वजन। तो आपका शरीर अगर 70 किलो का है, तो समझ जाओ उसमें से 2 किलो के तकरीबन माइक्रोब्स हैं। ओके, बैक्टीरिया हैं। और ये हमारे गट के सिस्टम को ठीक ठाक रखने में मदद करते हैं। और आगे हम बात करेंगे कि क्या क्या फ़ायदा होता है। तो ये जो गट माइक्रोबायोटा होते हैं, इनके मेन फंक्शन क्या है? इनका मेन फंक्शन सबसे पहला कि हमने जिस तरह से खाना खाया, खाना खाने को जैसे हमने पचाना चालू किया, तो उसके न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, देखिए आप दिन भर में तकरीबन 1.5 से 2 किलो शायद खाना खाते होंगे कुल मिला के। ओके, लेकिन हमारे काम की चीज़ें बहुत कुछ होती हैं, और वही काम की चीज़ें सिर्फ हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है, उसके अलावा कुछ नहीं करता। बाकी सिर्फ हम अपने जीभ को, हमारी आँख को, हमारे नाक को सेटिस्फाई करने के लिए खाना करते हैं। आँख से खाना दिखता है बहुत अच्छा, नाक से अच्छी अच्छी खुशबू आती है उसकी, और जीभ से टेस्ट आता है। ओके, बाकी सारा कुछ नहीं काम का, सिर्फ न्यूट्रिएंट्स काम के हैं जो हमारे शरीर में काम आते हैं। ओके, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का जो ट्रैक है, जो रास्ता है, मतलब जो इंटेस्टाइन का इनर लेयर है, उसको अच्छी तरह से फंक्शन करने में मदद करता है। क्योंकि वो अच्छी तरह अच्छा रहा तो लीकी गट नहीं रहेगा। लीकी गट क्या होता है, जिस दिन आप उसके बारे में बात करेंगे हम उसमें बता देंगे। कई ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो खराब बैक्टीरिया होते हैं ना, अच्छे बैक्टीरिया, बुरे बैक्टीरिया। तो जो बुरे बैक्टीरिया हैं, ये जो टॉक्सिन है, उनको कंट्रोल में रखता है अच्छे बैक्टीरिया। ओके, और ये कई अच्छे अच्छे एंजाइम के वजह से हमारे इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करता है। तो जैसे फारूक जी ने भी कहा था ना कि ये जो डिमेंशिया और अल्जाइमर लोगों को लगा दिमाग की बीमारी है, जी नहीं, बीमारी दिमाग की है, शुरुआत पेट से होती है, गट से होती है। ओके, और क्या करता है ये माइक्रोबायोटा? हमारे बेनिफिशियल माइक्रोबायोटास को प्रोड्यूस करता है। मतलब जो भी हम खाना खाते हैं उसको शॉर्ट चेन फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है, जो हमारे शरीर के कई सारे काम में मदद करता है। ओके, तो अब गट माइक्रोबायोम होते क्या हैं? माइक्रोबायोम बेसिकली, जैसे मैं आपको बताया, बैक्टीरियाज हैं बेसिकली, लेकिन वो 2 टाइप के होते हैं, एक अच्छे वाले, एक बुरे वाले। तो ये जो जिसमें ग्रीन कलर और एक रेड कलर आजू बाजू में है, बैक्टीरियोइड्स लिखा है और दूसरा फर्मेक्यूटिस लिखा है। जो बैक्टीरियोइड्स हैं ये अच्छे बैक्टीरिया हैं जिसको, और जो फर्मेक्यूटिस हैं वो बुरे बैक्टीरिया हैं। ओके, अगर कहा जाए कि उससे फ़र्क क्या पड़ता है, एक फ़र्क ये पड़ता है, अगर अच्छे बैक्टीरिया होंगे तो आपका वेट लॉस करने में मदद करेंगे। ओके, और अगर बुरे बैक्टीरिया ज़्यादा होंगे तो आपका वेट बढ़ाने में मदद करेंगे, है ना। तो हर बुरा काम फर्मेक्यूटिस करेगा और हर अच्छा काम बैक्टीरियोइड्स करेगा, जो अच्छे बैक्टीरिया हैं। अब आपका हेल्दी गट कैसे डिसाइड होगा? अगर आपके शरीर के अंदर अच्छे बैक्टीरिया ज़्यादा हैं और बुरे बैक्टीरिया कम हैं, तो आपका गट हेल्दी गट है। और अगर आपके शरीर के अंदर बुरे बैक्टीरिया ज़्यादा हैं और अच्छे बैक्टीरिया कम है, तो आपका गट बेकार गट है, मतलब तकलीफ वाला है। आप मोटे हो सकते हो, डायबिटिक हो सकते हो, ये सारी चीज़ें हैं उसके अंदर। अब हेल्दी गट का, अच्छा बैक्टीरिया का सिस्टम क्या है? अच्छा बैक्टीरिया का मतलब ये है कि अप्रोक्सीमेटली अच्छा गट, जहाँ पर
85% या उससे ज़्यादा अच्छे बैक्टीरिया हों आपके शरीर में, और 15 या 15% से कम अगर बुरे बैक्टीरिया हैं, बैड बैक्टीरिया, तो एक बार चल जाएगा। मतलब ये कि ऐसा नहीं कि 15 ही होना चाहिए, 15 से कम मैं कह रहा हूँ, ओके। और 85 होना चाहिए, 85 से ज़्यादा होना चाहिए। तो जितने अच्छे बैक्टीरिया ज़्यादा रहेंगे उतना आप हेल्दी रहोगे, उतना आपका गट हेल्दी रहेगा। जितना आपका गट हेल्दी रहेगा तो आपको बेनिफिट क्या क्या मिलेगा? आपकी स्किन अच्छी रहेगी, आपका इम्यूनिटी अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत सारे एंजाइम्स और बहुत सारे हार्मोन्स बनाता है, और इम्यूनिटी के कई सारी चीज़ें भी गट ही बनाता है ना। वाइट ब्लड सेल ये सब गट बनाता है, गट की वजह से ही बनता है। आपने ये सुना होगा कि हमारे जैसे फारूक ने बताया था कि हमारे ब्रेन का और गट का एक कनेक्शन है जिसको बोलते हैं ब्रेन गट एक्सेस, है ना, वो आपस में कम्युनिकेट करते रहते हैं। तो इसका कहने का मतलब मेरा ये है, आपने कई बार देखा होगा जब आपका पेट में गड़बड़ है ना, तो आपका मूड ठीक नहीं रहता, आप स्ट्रेस में रहते हो, आपको शायद नींद में नहीं आती, है ना। किसको पेट दर्द में नींद आती बताइए? अनलेस अल्टील आपने कोई पेन किलर खा लिया हो, है ना, जो कि हम अवॉइड करने को कहते हैं, ओके। तो अच्छा गट से आपका मूड अच्छा रहता है, स्ट्रेस नहीं होता और अच्छी नींद आती है। अच्छा गट रहेगा तो आपका वेट कंट्रोल में रहेगा, कम रहेगा, क्योंकि आपका डाइजेशन अच्छा है, आपकी मेटाबॉलिज्म अच्छी है, आपकी एनर्जी लेवल अच्छा रहता है, क्योंकि आप सारा जो आपने कैलोरी कंज्यूम किया है उसको यूज़ कर लेते हो आप, क्योंकि मेटाबॉलिज्म अच्छा है इसलिए। और आपके भूख नहीं लगती, क्योंकि हम ये सकाटी हार्मोन भी बनाता है, ओके। आपका जॉइंट हेल्थ अच्छा रहता है, आपका हार्ट हेल्थ अच्छा रहता है, आपका ब्रेन हेल्थ अच्छा रहता है, ये आपका हेल्दी गट के वजह से। अगर आप देखे जाए तो अनहेल्दी गट और हेल्दी गट में क्या फ़र्क है? देखिए आप, हेल्दी गट, अनहेल्दी गट की पहले बात कर लेते हैं। अगर आपका गट अच्छा नहीं है तो आप फूड सेंसिटिविटीज है, मतलब कुछ चीज़ें कभी कभी आप खा लेते हो तो आपको फूड पॉइजन हो जाता है। ब्लोटिंग आफ्टर एवरी मील, कई खाने ऐसे होते हैं जिनको खाने के बाद आपको ब्लोटिंग होता है। जैसे खास करके अगर आपने कभी राजमा ज़्यादा खा लिया या कभी आपने छोले ज़्यादा खा लिए तो आपको लगता है कि मेरा पेट ब्लोट हो गया। मैदा ज़्यादा खा लिया तो आपको गट पे ब्लोटिंग आने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर आपका गट अच्छा रहा तो शायद नहीं भी हो आपको, ओके। तो ये फ़र्क पड़ता है। और अच्छा गट मतलब अच्छे बैक्टीरिया ज़्यादा, बुरे बैक्टीरिया कम, ओके। इनकंसिस्टेंट टूल्स, एक ही बार में पेट साफ ना होना, एक्सेस गैस बनना, आपको खाना खाने के बाद अच्छा नहीं लगता, हैवी हैवी फील होता है। और जबकि अगर इसका ही अपोजिट है हेल्दी गट का, अगर आप देखोगे आपको ज़्यादा करके फूड को आप टॉलरेट कर लोगे, आपको ब्लोटिंग ना तो ना के बराबर होगी, आपका मोशन अच्छा रहेगा, स्टूल कंसिस्टेंट रहेगा और सॉलिड स्टूल रहेगा, गैस या तो नहीं होगी या बहुत कम होगी, है ना। तो जो भी गट अनहेल्दी होने से तकलीफ होती है वो यहाँ पर नहीं होती है। आपको अगर स्किन का प्रॉब्लम हो सकता है, एक्जिमा एक्ने हो सकता है, लेकिन अगर आपका गट अच्छा है तो शायद आपकी स्किन ग्लोइंग रहेगी, ओके। अगर आपका गट अनहेल्दी है तो आपको नींद बराबर से नहीं आएगी, जबकि उसमें आपको नींद अच्छे से आएगी अगर गट हेल्दी है तो। गट खराब है तो आपका हमेशा थका थका आपको महसूस लगेगा, लेकिन जब आपका गट हेल्दी है तो आपका एनर्जी लेवल काफ़ी अच्छा रहेगा। आपका अगर गट खराब है, ओके, अनहेल्दी है, तो आपकी मेंटल हेल्थ इम्बैलेंस रहेगी। जैसे कि मैंने कहा था, ब्रेन और गट का जो एक्सेस है, जो कम्युनिकेशन है, वो हमेशा होते रहता है ना। और अगर आपका गट अच्छा है तो आपको डिप्रेशन कम होगा, नींद अच्छी रहेगी, एंग्जाइटी नहीं होगा, आपका अलर्टनेस ज़्यादा अच्छा रहेगा। गट अगर आपका अनहेल्दी है तो आपकी इम्यून सिस्टम आपका वीक रहेगा, कमज़ोर रहेगा। लेकिन अगर गट आपका हेल्दी है तो आपका इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा, ताकि उसकी वजह से आप बीमारी बीमार कम पड़ोगे। आपको सीजनल जो एनर्जी होती है ना, इनफैक्ट अस्थमा भी बुरे गट का ही नतीजा है, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम सही नहीं है ना। तो आपको भी ये समझना है कि गट खराब कैसे होता है। ये सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से गट अनहेल्दी गट बन जाता है। अल्कोहल की वजह से बनता है, रिफाइंड शुगर की वजह से बनता है। रिफाइंड शुगर का मतलब जो आप शक्कर खाते हो वो, और उसके अलावा अगर आप सोचोगे कि मैं तो ये शक्कर खाता नहीं, लेकिन आप टॉफ़ी खा लेते हो, केक खा लेते हो, है ना, बहुत सारे प्रोसेस्ड जितने भी मार्केट में फूड मिलते हैं वो खा लेते हो, तो उसके अंदर रिफाइंड शुगर रहता ही है। आप कैफीन पीते हो, उससे आपके गट हेल्दी होने के चांसेस हैं। ज़्यादा तेल खाना या सैचुरेटेड फैट खाने से होता है। प्रोसेस फूड, जैसे कि मैंने अभी कहा, डेयरी प्रोडक्ट अगर ज़्यादा खाने से, और अगर आप स्पेशली अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंस हो तो आपका गट में प्रॉब्लम आ सकती है। नॉन वेजिटेरियन में भी देखा गया है कि अगर ज़्यादा आप एक्सेस नॉन वेज का अगर सेवन करते हैं तो भी गट अनहेल्दी हो सकता है।
और सबसे इम्पोर्टेंट, पुअर स्लीप एंड लाइफस्टाइल। पुअर स्लीप का मतलब ये हो गया कि आप अच्छे से नहीं सो रहे हैं, और इसका मेरा एक ही पैरामीटर है, अगर आप रात को आप अच्छे से सोए, इसका मतलब ये है कि दोपहर को खाना खाने के बाद आपको नींद नहीं आएगी, तब आप इसका मतलब समझ जाइए कि रात को आपकी अच्छी नींद हुई है। और पुअर लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल मतलब है कि आप सही टाइम पे सो रहे हो, सही टाइम पे उठ रहे हो, सही टाइम पे खा रहे हो, सही टाइम पे एक्सरसाइज कर रहे हो, ये सारी चीज़ें है ना। ये अगर आपका ठीक है तो आपको ये तकलीफ नहीं आएगी, लेकिन अगर ये बराबर नहीं है तो आपका गट कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। और इनके ऊपर हम कहीं ना कहीं बात करते रहते हैं, हाँ याद रखिएगा। जैसे कि वापस बार बार आपको रिमाइंड करा रहा हूँ, रिमाइंड इसलिए करा रहा हूँ ताकि आप बार बार आए और समझे पूरी बात को। नहीं तो आजकल तो लोग ना एक 15 सेकेंड का रील देख के समझते हैं उनको कि हमको सब कुछ आ गया। बिल्कुल नहीं। एक रील से अगर आ गया होता ना सबको, तो आज के डेट में सारे PhD हो गए होते इसके अंदर। बिल्कुल नहीं है। तो इसको समझिए। हम कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और अच्छी इन्फॉर्मेशन, काम की इन्फॉर्मेशन वो दे दें। ओके, तो आपके बॉडी को, आपके गट को, अच्छे गट को, हेल्दी गट बनाने के लिए जो 4 चीज़ें हैं जो सपोर्ट करती हैं, वो ये 4 चीज़ें बेसिकली, आप हेल्दी फूड खाने की प्रैक्टिस करिए, और एक्सरसाइज, तीसरा लाइफस्टाइल जिसमें आप स्ट्रेस और स्लीप को किस तरह से मैनेज करते हैं वो देखते हैं, और सप्लीमेंटेशन अगर आपके फूड के अंदर से अगर आपको पूरा नहीं मिलता है तो, ओके। और पूरा मिलता है या नहीं मिलता है, इसके लिए आपको 2-3 फैक्टर समझने होते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपके शरीर को क्या चाहिए, दूसरा आपको पता होना चाहिए कितना चाहिए, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि आप कितना खा रहे हो, शरीर को कितना दे रहे हो। तो कितना चाहिए में से अगर आप माइनस करोगे कितना खा रहे हो, तो जो गैप है वो आपको सप्लीमेंट से पूरा करना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। नहीं तो वो जो मैं आपको बता रहा हूँ अनहेल्दी गट, वो हो सकता है बिल्कुल। ठीक है, तो जैसे कि भी हमने समझ लिया कि हमारा गट क्या होता है और गट के काम क्या है, गट खराब कैसे हो सकता है। अब गट अगर खराब हो गया तो फिर कैसे ठीक किया जाए। ठीक उसी तरह से अगर आपका मोबाइल या लैपटॉप खराब हो जाए तो आप क्या करते हो, स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करते हो, रीसेट कहते हैं जिसे। तो उसी तरह से गट को भी आप रीसेट कर सकते हो। तो गट रीसेट बेसिकली करता क्या है, गट रीसेट बेसिकली जो हमने कहा था कि आपके बॉडी के अंदर जो ये जो बैक्टीरियाज हैं, अच्छे वाले बुरे वाले, इनको बैलेंस में लाना। बैलेंस में लाना मतलब इस तरह से बैलेंस में लाना, अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाना और बुरे बैक्टीरिया को कम करना, इसको कहते हैं गट रीसेट। अब गट रीसेट अगर उसको कहते हैं तो कैसे होता है, तो गट रीसेट का बेसिकली 7 से 10 दिन का एक प्रोग्राम होता है। ओके, उस प्रोग्राम के अंदर आपको कुछ आदतें चेंज करनी होती हैं, मतलब कुछ आदतें चेंज करनी होगी, कुछ खानों को छोड़ना होगा, कुछ खानों को ऐड करना होगा। और 1 हफ्ता इसलिए क्योंकि 1 हफ्ते में ऐसा साइंटिफिक एविडेंस ऐसे मिले हैं कि अगर आपने आज कुछ खाया है तो उसके कुछ ना कुछ कण और कुछ ना कुछ ट्रेसेस आपके बॉडी के अंदर 7 से 10 दिन के अंदर तक रहेंगे, उसके बाद ही वो निकलते हैं। ओके, तो इस तरह से आप इसको ये भी समझ सकते हो कि डिटॉक्सिफाई कर रहे हैं आप अपनी बॉडी को। ओके, तो 10 दिन के अंदर जब आप गट रीसेट करने को जाते हो तो कुछ तकलीफें भी आएंगी आपको, आपको कुछ एहसास होगा, तो उसमें उस वक्त आपने क्या देखना है। अगर आपको कोई तकलीफ है तो गट रीसेट के बाद हो सकता है कि वो तकलीफ थोड़ी बढ़ जाए, तो डरना नहीं है उससे। ओके, और कुछ चीज़ों को अगर आप अवॉइड कर रहे हैं तो आपको अजीब सा लगेगा, है ना, क्योंकि आप अभी तक खा रहे थे तो अभी अचानक बंद कर रहे हो, है ना। जैसे आपको हम कहेंगे कि आपने चाय नहीं पीनी है अगले 7 से 10 दिन तक। अब कई तो बोलेंगे सुबह उठ के बिना चाय पिए तो मेरा दिन ही चालू नहीं हो सकता, कुछ मैं कर ही नहीं सकता कुछ भी, पेट साफ करने के लिए मुझे चाय पीना पड़ता है। तो ठीक रहिए, बट कोई बात नहीं, यही रीसेट है ना। जैसे कि जब आप अपने मोबाइल को रीसेट कर रहे हो तो अगर उसको 2-3 मिनट लग रहे हैं तो आप ये नहीं बोल सकते ना 2-3 मिनट में मुझे कॉल करना ही करना है, भले वो रीसेट हो रहा हो। नहीं तो नहीं, थोड़ी देर के लिए छोड़ दो उसे, कोई बात नहीं। होता क्या है कि हमारा शरीर अपने आप एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करता जब तक हम उसे कुछ खाने को न दें, और टेम्पररी चेंजेस से कभी आपको प्रॉब्लम आ सकती है, एनर्जी लेवल हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, ये कुछ समय के लिए है। ओके, उसके बाद सब ठीक ठाक हो जाएगा। और बॉडी को एक बार इसको ना एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भैया हमें बुरे बैक्टीरिया से निकालना है ना। क्या कहा जाए, अभी मेरा बहुत बुरा एग्जाम्पल है लेकिन क्या करूं, सही एग्जाम्पल है। सुअर, पिग, है ना, तो गटर में ही रहता है, उसको वही मजा आता,
तो जिस तरह से हमारे शरीर के अंदर बैड बैक्टीरिया बढ़े हुए हैं, तो कभी कभी हमें उनके साथ रहने में मजा आता है, तो क्या करें, उसको कुछ कर नहीं सकते, उसको निकालना है भाई। अगर आपको समझ में आ गई बात कि हमें गट रिसेट करके गट के माइक्रोबायोटा को बढ़ा देने हैं, तो क्या करना पड़ेगा, तो बैड बैक्टीरिया के साथ रहने की जो हमें आ रही आदत है, तो उसको थोड़ा थोड़ा हटाना पड़ेगा। तो कोई टेंशन नहीं लेना है इस बारे में, ओके, हो जाता है। तो करना क्या है, कुछ चीजें हैं, आपको कुछ हैबिट्स चेंज करनी है, जो आपको गट को जो अनहेल्दी बनाते हैं उन चीज़ों को हटा देना है। आपको अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए कुछ चीज़ें सीखनी है, आपको कुछ अपनी आदतें चेंज करनी है, आपको सर्काडियन रिदम के हिसाब से आपके बॉडी के साथ चलना है। सर्काडियन रिदम एक सेपरेट टॉपिक है, इसका मतलब सिंपल ये है, जहाँ पे बताया जाता है किस टाइम पे खाना चाहिए, किस टाइम पे नहीं खाना चाहिए, किस टाइम पे सोना चाहिए, किस टाइम पे नहीं सोना चाहिए, ओके, ये सर्काडियन रिदम है। तो उसमें आपको समझ में ये सर्काडियन रिदम फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि है ना, क्योंकि अगर आप रात को नहीं सोगे तो बुरे बैक्टीरिया को तो मजा आएगा ना, रात ही में सारे गंदे काम होते हैं, तो सारे मवाली तो रास्ते को वही टाइम पे निकलेगा ना। तो पहले तो 4 आवर्स को समझ जाइए गट हेल्थ के लिए। इसका 2 आवर पहले ही है रिमूव एंड रिप्लेस, और दूसरा है रीबैलेंस एंड रीसेट। आपको अपने उस खाने से रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट और सैचुरेटेड फैट निकाल देना है, आपको रिप्लेस करना है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और हेल्दी फैट से, और हाई क्वालिटी प्लांट बेस्ड प्रोटीन से। क्यों प्लांट बेस्ड प्रोटीन, क्योंकि जैसे कि हमने देखा है कि नॉनवेज भी बुरे बैक्टीरिया को बढ़ाने में मदद करता है, क्योंकि हमें बुरे बैक्टीरिया बढ़ाने नहीं कम करना है, इसलिए हम प्लांट बेस्ड प्रोटीन की बात कर रहे हैं। हमें रीबैलेंस करना है, मतलब ये कि गट के जो माइक्रोबायोम है उसको रीबैलेंस करना है, मतलब अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाना है तो बुरों को कम करना है। तो बढ़ाने के लिए मतलब ये कि अच्छे बैक्टीरिया का खाना देना है और कुछ अच्छे बैक्टीरिया ऊपर से डालना है, ओके। और इन सबको फैसिलिटेट करने के लिए हमें प्लांट बेस्ड प्रोटीन अगेन उसकी ही जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये अपने प्रोटीन एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है हमारे सेल बनाने में। सेल क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या है, प्रोटीन का इंपॉर्टेंस क्या है, ये सब अगेन मैं बोलूँगा कि किसी न किसी लेक्चर में आपको ये सुनने को मिल ही जाएगा, ओके। हेल्दी गट के कुछ हेल्दी टिप्स, आप होल ग्रेन खाइए ना। होल ग्रेन का मतलब ये है कि आप रिफाइंड चीज़ें मत खाइए, जैसे मैदा अवॉइड कर लीजिए, ओके। आप पॉलिश्ड दाल नहीं खाएं, आप पॉलिश्ड राइस नहीं खाएं, है ना। अच्छा रहेगा जो आप होल ग्रेन के खाएंगे, क्योंकि होल ग्रेन जब आप खाते हैं तो उसके अंदर आपको फाइबर मिलता है, तो उसके अंदर जो सोल्यूबल फाइबर होता है, वो सोल्यूबल फाइबर बेसिकली अच्छे बैक्टीरिया जो हमारे पेट के अंदर है उनका खाना है, ओके। आप प्लांट बेस्ड फूड के ऊपर शिफ्ट हो जाए। क्यों, अगेन हमें बोलो, जैसे कि हमने पीछे देखा कि एनिमल बेस्ड मतलब नॉन वेज जो फूड होता है वो बुरे बैक्टीरिया को बढ़ाने में काम करता है, प्लांट बेस्ड नहीं करता। आप फर्मेंटेड फूड को स्टार्ट कर सकते हैं। फर्मेंटेड फूड बेसिकली जो है, जैसे इडली हो गया, ढोकला हो गया, देन डोसा भी उसी में आता है, प्लस कांजी एक चीज़ है, और फर्मेंटेड आप वेजिटेबल कर सकते हैं। आप रेसिपी देखें कहीं मिल जाएगा। जो मेरा सबसे फेवरेट है, मैं बीट लाता हूँ, बीट को काटता हूँ, एक कांच की बोतल लेता हूँ, उसको पानी से भरता हूँ, बीट पूरा भर देता हूँ उसके अंदर, पहले लंबे लंबे फिंगर साइज काट के पूरा भर देता हूँ उसको पूरा पानी से भर देता हूँ। अच्छा, वो करने से पहले कांच को गर्म पानी से एक बार धो लेता हूँ, ताकि कांच के अंदर के बुरे बैक्टीरिया रहेंगे वो आए नहीं उसके अंदर, ओके। और उसके बाद उसके अंदर सॉल्ट ज़्यादा डालता हूँ। इसका मतलब ये कि अगर समझो 1 किलो की कांच की बोतल है तो मैं तकरीबन 6 से 7 चम्मच, ओके, विच इज़ अराउंड 30-35 ग्राम ऑफ सॉल्ट, वो डाल देता हूँ उसके अंदर। और फिर कुछ नहीं करना है, उसको 5-6 दिन के लिए रख देना है। एवरी डे अगर आप उसको खोलिए और थोड़ा सा हिला दीजिए एक बार अच्छे चम्मच से, और फिर वापस उसको पैक करके रख दीजिए, ओके। उसके बाद उसको आप खाना चालू करिए, इतना मज़ा आएगा आपको, जबान को भी और आपके गट को भी बहुत अच्छा लगेगा। तो ये एक फ्रेगमेंटेड फूड की छोटी सी रेसिपी मैंने आपको बता दी। दारू वगैरह बंद कर दीजिएगा इन टाइम पे, और अगर आपको हेल्दी गट हमेशा रखना है तो जितना आप बंद कर दोगे उतना अच्छा, ओके। इससे आपको ब्लोटिंग भी होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, आपको डिहाइड्रेशन भी होता है ना, ये सारी चीज़ें भी हैं। आपको पानी ज़्यादा पीना है इस पीरियड में,
और इस पीरियड का मतलब ये नहीं कि खाली इसी 6-7 दिन के अंदर ही पीना है आपको पानी, आपको हमेशा पानी ज़्यादा पीना है। कारण ये, क्योंकि पानी अगर नहीं पियोगे आप तो फिर आपको डिहाइड्रेशन की शिकायत रहेगी, आपका अगेन एनर्जी लेवल कम हो जाता है उससे, हाइड्रेशन है ना। और गट हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अंदर की लाइनिंग को सेफ रखने में काम आता है ना, तो फिर लाइनिंग भी डिहाइड्रेट होती है और फिर वहाँ से क्रैक्स वगैरह चालू होने के चांसेस होते हैं। डाइजेशन में सपोर्ट करता है, ये आपके बॉडी का जो वेस्टेज होता है उसको भी फ्लश आउट करने के लिए काम करता है, जो वेस्ट और टॉक्सिन्स है थ्रू यूरिन। और ये आपके बॉडी का जो इंटेस्टाइनल लाइनिंग है उसको मेंटेन करने के लिए भी काम करता है, और आपके इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए काम करता है, बिकॉज गट को ये सब काम करने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। आप एक तो हमने फूड की बात कर ली, अभी हम बात करते हैं एक्सरसाइज की, जो कि 4 फैक्टर थे आपके गट रिसेट के टाइम पे। आपको फिजिकल एक्सरसाइज करना चाहिए, ओके। अब मैं इतना सब कुछ नहीं कहूँगा, मैं सिर्फ आपको एक ही चीज़ बताता हूँ। मैंने अभी तक 2-3 बार वो बात को बोल दिया है, गट और ब्रेन का रिलेशन है, जो फारूक जी ने भी कहा, ओके। तो आपने ये सुना होगा कई बार कि एक्सरसाइज करने से हमारे हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं, हमें अच्छा महसूस होता है। तो ऑब्वियसली है, जब आपका ब्रेन को अच्छा महसूस होगा तो ऑब्वियसली आपके गट को भी अच्छा महसूस होगा। ये बात अगर आपने समझ ली तो आगे आपको कोई कुछ समझने की जरूरत नहीं है। तो आप समझ जाओ, गट को हेल्दी रखने के लिए, जिसके वजह से कई सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं, आपका एनर्जी लेवल, इम्यूनिटी, आपकी कई सारी बीमारियां नहीं हो सकती आपको उसके वजह से, आपका कई सारे हार्मोन्स अच्छे से बनते हैं। इतना सारा चीज़ अगर आपका एक चीज़ से अगर सुधर सकता है, एक सेंटेंस अगर समझने से सुधर सकता है, तो व्हाई नॉट टू डू दैट। आप एक्सरसाइज करिए, जितना एक्सरसाइज करोगे उतने आपके ब्रेन में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे, जितना हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे आपका स्टमक भी और आपका गट भी उतना ही अच्छा महसूस करेंगे, ओके। बाकी जितना ज़्यादा आप गट महसूस करोगे उतने, जब आपका गट खुश रहेगा इसका मतलब आपके अच्छे बैक्टीरिया बढ़ रहे हैं, बुरे घट रहे हैं, ओके। स्ट्रेस भी इसी तरह से है, आपके ब्रेन में स्ट्रेस आएगा, वो वापस आपके पेट को सिग्नल भेजेगा, आपके पेट में टेंशन चालू हो जाएगा, बुरे बैक्टीरिया बढ़ने लग जाएंगे, अच्छे बैक्टीरिया कम होने लगेंगे। सेम चीज, ज़्यादा कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है इसके अंदर। इतना अगर आपने समझ लिया कि 2 चीज़ का रिलेशन है और 4 चीज़ों को आपको कंट्रोल करना है, डू दैट एनी हाउ। और एक चीज, गट रिसेट के अंदर मॉर्निंग न्यूट्रिशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। मॉर्निंग न्यूट्रिशन क्या है? मॉर्निंग न्यूट्रिशन का मतलब ये है कि दिन भर में जितना आपको न्यूट्रिएंट्स चाहिए उसका तकरीबन 40 से 50% अगर आपने न्यूट्रिएंट्स सुबह ही अपने शरीर को दे दिए तो आपका टेंशन काफ़ी रिड्यूस हो जाता है दिन भर का। वो क्यों सुबह आपने इतना न्यूट्रिशन देना है बॉडी को? क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे लाल कलर का एक बॉक्स बना हुआ है, स्क्वायर बना हुआ है, जिसमें ऑल्ट्रेशन इन गट बैक्टीरिया। क्योंकि रात भर जब हम सोते हैं तो बॉडी के अंदर रिपेयर होता है, तो रिपेयर होने की वजह से होता है कई न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर के कम हो जाते हैं, तो सुबह हमें उनकी ज़रूरत पड़ती है। और प्लस सुबह सुबह अगर आपने, जैसे कि आपको बताऊँ, जैसे एक चीज़ बताता हूँ, सुबह सुबह आपका ना ये इंसुलिन बॉडी ज़्यादा निकालती है, तो बॉडी ज़्यादा निकालती है सोच समझ के निकालती है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि अभी आप उठे हो, अभी आप ज़्यादा काम करोगे, है ना। जब ज़्यादा काम करोगे आपको ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो आपको ज़्यादा खाना है, ज़्यादा खाना है तो ज़्यादा एनर्जी आएगी, ज़्यादा एनर्जी के लिए आप जब ज़्यादा खाओगे तो आप ज़्यादा शुगर प्रोड्यूस होगा। शुगर मतलब जो शरीर के लिए जो ताकत की जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है, उसको शुगर ही कहते हैं। और वो शुगर को हर सेल तक जाना जरूरी है, क्योंकि आपके शरीर का एनर्जी मतलब सेल का एनर्जी, ओके। और सेल तक जब तक वो नहीं पहुंचेगा तो फिर आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। तो इसीलिए कहने का मतलब ये है कि सुबह सुबह आपके बॉडी को ज़्यादा हर चीज़ की ज़रूरत होती है, अच्छे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत ज़्यादा रहती है सुबह। तो अर्ली मॉर्निंग में अगर आपने दे दिया तो आपको दिन भर के लिए वो आपको हेल्प करता रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप दोपहर को नहीं खाओगे, रात में नहीं खाओगे, बट आपको सपोर्ट सुबह से अच्छे से मिल जाता है ना। जैसे कहा जाता है ना कि अगर बच्चा जब ग्रोइंग हो सुबह, बच्चा जब अर्ली एज में अगर ग्रोइंग है वो, अगर आपने उस वक्त उसका अच्छे से ख्याल रख दिया किसी भी चीज़ से, उसकी पढ़ाई में बोलो, उसके संस्कार में बोलो, उसके शरीर के ऊपर कहो, अगर आपने शुरू में अगर आपने ध्यान दे दिया तो उसके लाइफ टाइम उसको काम आएगा। सही है। उसी तरह से
सुबह के टाइम पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, सुबह आपने ज़्यादा प्रोटीन खाना है, सुबह आपने अच्छा फाइबर खाना है, सुबह आपने प्रोबायोटिक्स खाने हैं। ओके, तो इससे आपको फ़ायदा मिलेगा आपके गट को संभालने के लिए। अब प्रोटीन की ज़रूरत क्यों है? अब मैं तो कई बार बोल चुका हूँ, रोज़ कई बार बोलता हूँ, तो मुझे ज़रा ऐसा लग रहा है, लेकिन कई लोगों के लिए जो नए हैं उनके लिए आपको पता होना चाहिए कि प्रोटीन कुछ नहीं है, प्रोटीन अमीनो एसिड्स का एक बंडल है, और ख़ास करके जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। अब ये जो टेक्निकल टर्म है इसको समझने के लिए आप किसी और जब प्रोटीन का सेशन होगा उसमें आओगे, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर प्रोटीन अगर आपने लिया तो फ़र्क क्या पड़ता है इससे? सबसे पहले तो प्रोटीन आपके सेल बनाने में काम आता है, ये आपके गट के इम्यून फंक्शन को एक्टिव रखने के लिए, अच्छी तरह से काम करने के लिए काम आता है। ये आपके गट का जो इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फ्लेमेशन अभी कैसे बताऊं, कभी आपको यहाँ फोड़ी हुई है, क्या होता है वहाँ पे? लाल, सूजन, गरम, दर्द, है ना? ये तो ऊपर है इसलिए आपको पता चल रहा है, पेट के किसी हिस्से में होगा आपको पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, कई बार आप सुनते हो कि किसी के पेट से इतना बड़ा गोला निकला। आप इमेजिन करिए, क्या वो पहले दिन ही इतना बड़ा गोला हो गया था? नहीं, पहले इतना रहा होगा छोटा सा, फिर आस्ते 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 हुआ। क्या तब तक पता नहीं चला? नहीं पता चलता। उसी तरह से इन्फ्लेमेशन अंदर का आपको पता कभी नहीं चलेगा। ओके, बाहर का इन्फ्लेमेशन आपको पता चल जाएगा, अंदर का नहीं चलेगा। आपको लगेगा नहीं है, लेकिन होगा शायद, आपको नहीं मालूम। तो अगर आपने अच्छा प्रोटीन खा लिया तो गट के इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने में प्रोटीन मदद करता है। ओके, और अच्छे प्रोटीन आपके अच्छे माइक्रोबायोटा को बढ़ाने में काम करता है। गट का जो खाना पास होना, सिक्रेशन होना, इसमें मदद करता है। ओके, और जो गट के बैरियर्स हैं, आपको बताया था मैंने कि जो बुरे बैक्टीरिया को मारने के लिए काम आते हैं, अच्छे बैक्टीरिया, उसको इंक्रीज करने के लिए काम आता है। इसलिए प्रोटीन आपको सुबह सुबह जरूरी है। फाइबर, फाइबर क्यों जरूरी है? फाइबर बेसिकली दो टाइप का होता है। ओके, एक सोल्यूबल और एक होता है इनसोल्यूबल। सोल्यूबल फाइबर जो है वो आपके अच्छे बैक्टीरिया का खाना है, जिसको हम बोलते हैं प्रीबायोटिक। तो यहीं पर डाइटरी फाइबर प्रीबायोटिक लिखा होगा, ये अच्छे का खाना है। जब अच्छे बैक्टीरिया को आप खाना दोगे तो क्या होगा? वो हेल्दी होंगे, उनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी। ओके, और जब उनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो जितने भी हमने अभी तक आपको फायदे बताए थे वो आपको सारे मिलेंगे। न्यूट्रिएंट एब्सॉर्प्शन अच्छे से होगा। ओके, मेटाबॉलिज्म आपका अच्छा से होगा, आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, बीमार कम पड़ोगे, और अच्छे बैक्टीरिया बढ़ेंगे तो बुरे कम हो जाएंगे ऑटोमेटिक, क्योंकि बुरों को भी तो पकड़ता है ना वो, हमने पढ़ा आगे। अब जो डाइटरी फाइबर में हमने बताया था सोल्यूबल, इनसोल्यूबल, तो एक तो सोल्यूबल है जो आपको हमने बता दिया, थोड़ा यहाँ पर इनसोल्यूबल का भी थोड़ा सा ज्ञान ले लो। तो सोल्यूबल बेसिकली वो है जो पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ओके, और उसी के साथ में वो कोलेस्ट्रॉल को भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जो ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल आपने खाया। इसी तरह से अगर आपने ज़्यादा, आपके बॉडी के अंदर ब्लड शुगर ज़्यादा बढ़ गया है तो उनको भी खा लेते हैं। और फिर उनको कौन खाता है? सोल्यूबल को अच्छे बैक्टीरिया। तो आप समझिए कि ये सोल्यूबल फाइबर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने के लिए भी काम आता है, आपका ब्लड शुगर लेवल कम करने के लिए भी काम आता है। ये इसके और अच्छे बैक्टीरिया को खाना देने के काम आता है, तो अच्छे बैक्टीरिया बढ़ते हैं। ये सोल्यूबल फाइबर है। इनसोल्यूबल फाइबर क्या करता है? इनसोल्यूबल फाइबर बेसिकली आपके पूरे सिस्टम को साफ रखने का काम करता है। आप अपने घर किससे साफ करते हैं? झाड़ू से। झाड़ू के रेशों क्या बोलते हैं? फाइबर। बस ये फाइबर वही काम करता है, आपके पेट को साफ करने का काम, आपके स्टूल को बल्कि बनाने का काम। कहाँ मिलता है? होल व्हीट में मिलता है, इसलिए कहा जाता है मैदा मत खाओ, आपके गेहूं की रोटी खाओ, कोई भी मोटा अनाज है उसको खाओ, है ना? लीफी ग्रीन वेजिटेबल, किनोआ, ब्राउन राइस, या फिर आपके नट्स वगैरह जो आप खाते हैं उसमें मिल जाता है। आपके इंटेस्टाइनल हेल्थ के लिए अच्छा है, क्योंकि कोई भी चीज़ चिपकती नहीं है आपके आंतों में, साफ होते रहती है। आप इस तरह से देखिए, अगर आपके घर पे कोई नाली है, कोई पाइप है जहाँ से गंदा पानी जाता रहता है, अगर कुछ भी जाता है तो थोड़ी देर में उसके इनर लेयर पे कचरा जमा होने लग जाता है। इनसोल्यूबल फाइबर वो साफ करता रहता है। ओके, तो आपका सारा गट ठीक रहता है।
प्रोबायोटिक, प्रोबायोटिक वो है, प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक जैसे कि मैंने बताया था अच्छे बैक्टीरिया खाना। ओके, हमने ये भी पढ़ा था कि टोटल 5000 अलग अलग टाइप के बैक्टीरियाज हैं हमारे शरीर के अंदर। अब उस 5000 में से कई नहीं होंगे, अगर आपका गट बराबर नहीं है तो वह कहाँ से आएंगे? अपने आप तो पैदा होने नहीं उन्होंने। हम खाते हैं प्रोबायोटिक को। जैसे एग्जांपल के लिए हम दही खाते हैं, ये प्रोबायोटिक बढ़ाने में काम आता है। ओके, आपने कई मार्केट में प्रोडक्ट देखे होंगे जो प्रोबायोटिक के हैं। ओके, तो बेसिकली प्रोबायोटिक वो चीज़ है जो आपके बैक्टीरिया के अंदर जो पूरी जो स्पीसीज हैं जो पूरे नहीं है आपके शरीर के अंदर, तो आप उनको मुंह के थ्रू पेट में गट में डालते हो ताकि उनकी क्वांटिटी भी बढ़े बाद में। ओके, तो अगर आपने मतलब और बैक्टीरिया अंदर डाल दिए जो नहीं थे, अब होगा क्या? जो ऑलरेडी पेट के अंदर अच्छे बैक्टीरिया है उनके साथ इंटरेक्शन करेगा और अपनी पॉपुलेशन बढ़ा सकता है। ओके, ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड का, जैसे हमने कहा था ना, मेटाबोलाइट करके शॉर्ट चेन फैटी एसिड बनाता है, वो काम करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बुरे बैक्टीरिया का फंक्शन, वो बैरियर को, बुरे बैक्टीरिया के लिए वो बैरियर बनता है। ओके, और एंजाइम प्रोडक्शन, इम्यून सिस्टम इंप्रूव होना, ये सारे काम जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं सारा अच्छा काम करेगा। मतलब प्रोबायोटिक, प्रोबायोटिक मतलब अच्छे बैक्टीरिया जो आप खा रहे हो वो। अब क्या ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो हमें प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक दोनों देते हैं अगर हमारे खाने से हमें पूरा नहीं मिल रहा तो? बिल्कुल, न्यूट्रीलाइट का एक प्री और प्रोबायोटिक आता है। प्रोबायोटिक जैसे कि हमने कहा था कि लाइव बेनिफिशियल बैक्टीरिया, मतलब वो जिंदा बैक्टीरिया है। ओके, और अब इसको नॉनवेज मत कह लेना कोई। ओके, इसमें ग्रीन कलर का टीका है, वो समझ जाइए। और प्रीबायोटिक वो बैक्टीरिया जो वो चीज़ है जो अच्छे बैक्टीरिया का ऑलरेडी खाना है। ओके, इसके अंदर एक खास चीज़ है, बैसिलस कोगुलेंस। ये है क्या? ये चीज़ आप समझ जाइए। वैसे आपको बहुत सारे प्रोबायोटिक मार्केट में मिल जाएंगे, लेकिन उनमें कुछ ना कुछ तकलीफ है। जब भी आप जिसने बोला उसको पूछेगा वो बता देगा आपको। इसके अंदर बैसिलस कोगुलेंस है, उसका मतलब क्या है? वो ये चीज़ है जो बेसिकली दूध से बनता है। उनके दूध के अंदर जैसे दूध से हम दही बनाते हैं, बैक्टीरिया बनता है, तो वैसा ये भी दूध से बनता है। तो दूध से बनता है, लेकिन इसकी जो खासियत है सबसे बड़ी वो ये है कि देखो, आपने कोई भी चीज़, कोई अगर बैक्टीरिया को अगर समझो आपने पेट में डाला, तो पेट के अंदर ही आपके स्टमक में ही एसिड इतना स्ट्रांग है कि वो उसको मार सकता है उधर। और जैसे कि मैंने कहा था कि आपके शरीर के अंदर पूरे गट में जितना आप नीचे जाओगे उतने ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं उधर, और वहीं होने भी चाहिए। अगर आपके पेट में ही, स्टमक में ही अगर वो बैक्टीरिया मर गए तो आपका वो प्रोबायोटिक खा के कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा प्रोबायोटिक आपने खाना है जो पेट की एसिड, पेट की गर्मी, वो सबको पास करके वहां चले जाए जहां पर उसे जाके बैठना है जिंदा, और फिर अपनी पॉपुलेशन बढ़ानी है। तो बैसिलस कोगुलेंस में वो खासियत है, इसका जो कवरिंग है, हार्ड कवरिंग, वो इसको रोकता है, मरने से बचाता है, और वहीं पर जाके वो खुलता है जहाँ पर उसको जाके खुलना चाहिए। मतलब ये कि अगर आप बम्बई से दिल्ली जा रहे हैं फ्लाइट में, तो पूरा फ्लाइट आपका वहाँ तक पहुँचाएगा, बीच में कहीं आपको छोड़ नहीं देगा ऊपर से। ओके, उसी तरह से बैक्टीरिया के साथ में। अगेन, अगर प्रोबायोटिक आपने अच्छा खा लिया, प्रीबायोटिक आपने अच्छा खा लिया, तो क्या होगा? वही जो अच्छा हेल्दी गट का जो फायदा है। ओके, इम्यूनिटी बढ़ेगी, डाइजेशन बढ़ेगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होने की वजह से इन्फ्लेमेशन पेट में नहीं होगा, जो कि अभी आपको समझाता है इन्फ्लेमेशन फूड के एग्जांपल से। ओके, तो गट का जो फाउंडेशनल जो, अगर आप गट रिसेट कर रहे हो तो उसके लिए क्या आपको खाना जरूरी है? प्रोटीन, फाइबर और प्री एंड प्रोबायोटिक। जैसे कि आपको हमने बताया थोड़ी देर पहले, प्रोटीन की जरूरत क्यों है गट रिसेट में, आपको समझ में आ गया। फाइबर की जरूरत क्यों है? फाइबर मैंने आपको बताया दो टाइप के हैं, सोल्यूबल, नॉन सोल्यूबल। सोल्यूबल आपका कोलेस्ट्रॉल को भी पकड़ लेता है, ग्लूकोज को भी पकड़ लेता है, और अच्छे बैक्टीरिया खाना भी है। और नॉन सोल्यूबल आपके पेट को साफ करने में काम आता है। ओके, प्री एंड प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक जो अच्छे बैक्टीरिया का खाना है, और प्रोबायोटिक वो बायोटिक आप अंदर डाल रहे हो, बैक्टीरिया अंदर डाल रहे हो जो आपके शरीर के अंदर
नंबर ऑफ स्पीसीज को बढ़ाएगा। तो इसलिए ये 3 एक सेट का प्रोडक्ट है जो आपको लेना ही चाहिए अगर आप गट रिसेट में जा रहे हैं, क्योंकि एक बार अपने गट रिसेट में गए उसके बाद फिर आप कोई भी काम कर सकते हो। तो समझ जाओ ये फाउंडेशन है। अगर आपको कहीं पर घर बनाना है और जंगल बहुत है तो पहले जंगल की झाड़ियाँ काटनी पड़ेंगी, उसको लेवल करना पड़ेगा, जमीन मजबूत करनी पड़ेगी, पिलर डालने पड़ेंगे, उसके बाद आप बिल्डिंग खड़ा कर सकते हो। तो सेम चीज इसके अंदर भी है। ओके, तो आपको करना क्या है, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो खाना आप खाएंगे वो खाना एक साइंटिफिक तरीके से डिजाइन हुआ होना चाहिए। साइंटिफिक तरीका क्या है? साइंटिफिक तरीका मतलब ये कि आपको जितना प्रोटीन चाहिए वो उसके अंदर होना चाहिए, जितना फाइबर चाहिए उसके अंदर होना चाहिए, जितना कार्ब्स चाहिए उसके अंदर होना चाहिए, जितना फैट है उतना होना चाहिए। तो इस तरह से अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको एक समझ में आ जाएगा कि किस तरह से आपका प्लेट होना चाहिए। तकरीबन प्लेट का 50% आपका वेजिटेबल और फ्रूट होना चाहिए। हर बार आप फ्रूट नहीं खाओगे, मतलब कहने का मतलब है दिन भर में आपका क्या होना चाहिए। और वैसे भी बाकी टाइम पर तो आप सब्जी दाल चावल तो खाते ही है ना, या फिर प्रोटीन कम पड़ रहा है तो प्रोटीन सप्लीमेंट भी लेते हो। तो इस तरह से आपने खाना खाना है। आपको यहाँ जिसने बुलाया है उसके साथ से आप जिस रीजन के रहने वाले हो उसके साथ बैठ के खाना खा वो अपना प्लेट को डिज़ाइन कर सकते हो। जैसे कि अगर साउथ में कोई साउथ इंडियन बैठा था उसे मैं पनीर की डिश शायद नहीं बताऊँ, क्योंकि वो पनीर उतने चाव से नहीं खाते हैं। नॉर्थ इंडियन को शायद पनीर का डिश बता दूँ मैं, लेकिन हाँ पनीर भी एनिमल प्रोडक्ट है, तो ये वो टाइम पे नहीं खाया जाए जब आपका गट सेट हो रहा है। ओके, तो हमें क्या क्या करना चाहिए, हमें डाइट रिच फ्रूट और हमें ऐसा खाना खाना चाहिए जिसमें फ्रूट और वेजिटेबल ज़्यादा हुआ, जैसे कि हमने पिछले प्लेट में बताया 50% के आसपास होना चाहिए। हमें प्रीबायोटिक लेना पड़ेगा, पानी ज़्यादा पीना चाहिए। ज़्यादा का मतलब क्या, 2.5 से 3 लीटर पर डे। वैसे स्पेसिफिक अगर आपको देखना है तो पानी के ऊपर भी हमारा एक सेपरेट सेशन चलता है, आप उसमें भी पूरा डिटेल में समझ सकते हो कि कितना पानी पीना चाहिए, कैसा पीना चाहिए, कब पीना चाहिए, कौन सा पानी पीना चाहिए, है ना, वो सब चीज़ें। एक्सरसाइज आप रेगुलर करिए, खाने को चबा चबा के खाइए और स्ट्रेस को मैनेज करने के तरीके ढूंढ लीजिए। फाइबर रिच फूड खाना खाइए। फाइबर रिच फूड अगर आपने फ्रूट वेजिटेबल अच्छे से खाया और या फिर कॉम्प्लेक्स कार्ब खाया तो आपका फाइबर रिच फूड हो जाएगा। और नींद अच्छी तरह से लीजिए। और सर्काडियन रिदम जो हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कब खाना है कब नहीं खाना है, तो सर्काडियन रिदम ये कहता है कि आप सिर्फ डे लाइट में खाना खाइए, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के बीच में ही। एक बार सूरज ढल गया तो फिर खाने की जरूरत नहीं है। ओके, और दिन भर में कम से कम एक फर्मेंटेड फूड करिए, मैंने आपको एक रेसिपी बता दी आज। और न्यूट्रिएंट डेंस फूड खाइए। देखो जैसे कि मैंने कहा कि खाना तो हम 2-3 किलो दिन भर में खा लेते हैं सब मिला के, लेकिन सबका सब हमारा बॉडी कंज्यूम नहीं करता, क्योंकि हमारे बॉडी को सिर्फ न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं काम के। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट रिच फूड खाना खाइए। प्लांट बेस्ड फूड के ऊपर ज़्यादा रहिएगा, तो वैसे भी नॉनवेज नहीं खाना है 10 दिन के अंदर। और सोने और रात का खाने के बीच में कम से कम 2 घंटे का गैप होना चाहिए। ठीक है, और जो आपको नहीं करना है वो ये है कि आप रिफाइंड शुगर और प्रोसेस्ड फूड को नहीं खाइएगा, जंक फूड नहीं खाना है, सिगरेट नहीं पीनी है, दारू शराब नहीं पीना है, स्पाइसी फूड इस पीरियड में कम से कम मत खाइएगा, कैफीन कॉफ़ी नहीं पीना है या चाय नहीं पीनी है, प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना है, कैलोरी डेंस फूड नहीं खाना है। कैलोरी डेंस फूड जिसके अंदर सिर्फ कैलोरी है, कोई न्यूट्रिएंट नहीं है, उसको हम कहते हैं कैलोरी डेंस फूड। एनिमल बेस्ड फूड नॉनवेज नहीं खाना है। सोने के पहले कम से कम 1 से 2 घंटे तक अपने टीवी या मोबाइल या लैपटॉप देखना बंद कर देना है ताकि आपको नींद अच्छी आए। ये सर्काडियन रिदम में आता है, तो आप जब वो लैपटॉप पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आता है कि इसका इफेक्ट क्या पड़ता है आपके नींद के ऊपर, वो पता चलता है। डेयरी, जैसे कि आपको हमने कहा था कि डेयरी भी एक एनिमल फूड है, एनिमल से आया हुआ फूड है। तो डेयरी और डेयरी बेस्ड प्रोडक्ट को अवॉइड करिए, नहीं खाना है और शाइन करना है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि रोज़ सुबह उठिए, भगवान की को शुक्रिया अदा करिए कि आपने जो कुछ दिया है उसके लिए हम आपको शुक्रगुजार हैं। हाथ चल रहा है, पाँव चल रहा है, बोल रहे हैं, सांस ले रहे हैं, है ना, सोच रहे हैं, देख रहे हैं। अपना न्यूट्रिशियस फूड खाना खाइए, अपने न्यूट्रिशन को पूरा करिए। ओके, आपके लाइफ में क्या गोल्स हैं उसको क्लियरली विजुअलाइज करिए, और उसके लिए कुछ नया चीज़ सीखना हो वो सीखिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्सरसाइज रोज करिए। होप मैं आपके नॉलेज में कुछ
इम्प्रूव करने में कामयाब रहा गट और गट रिसेट के बारे में. थैंक यू वेरी मच. ओवर टू यू रुचिता. थैंक्स अ लॉट. Thank you so much, Manoj, for explaining that so wonderfully. I think सबको clarity मिल गई है. And like Manoj said, guys, हर decision मनोज और फरूक दोनों ने repeat किया. हर decision ये सोच के लें कि क्या ये हमारे अच्छे bacteria बढ़ा रहा है या बुरे bacteria. With that, we come to an end of this session. See you in the next one. And do continuously join us, like Manoj said repeatedly, because this is a holistic program where we're going to continue to learn. Good night. Stay safe.